حل کو دیکھ کر کے اس نے کلمہ طیبہ پڑھ دیا۔ اب ابو جہل نے کہا تمہیں خوف نہیں آتا؟ کرنا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی بندے سے نہیں ڈرتا، وہ خوف زدہ نہیں ہوتا۔ کہا میں تمہیں سختی کروں گا، ماروں گا، میرے سامنے یہ کلمہ پڑھ رہی ہے۔ کہا تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ اب اس نے مارنا شروع کیا، کمر سے چمڑے کا کوڑا نکالا اور بے تحاشا اسے پیٹنا شروع کیا۔ اس کے مالک کو بلایا، کہا تو اپنی خادمہ کو سمجھا دے، زنیرہ کو سمجھا دے۔ اس نے کہا کہ یہ میرے بس سے باہر ہو چکی ہے۔ کہا پھر اسے سزا کیوں نہیں دیتا؟ اب بیچ چوراہے پہ لایا، بیچ چوک پہ لایا، دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا، دونوں پیر کو باندھ دیا۔ کہا زنیرہ اب بھی تو باز آ جا۔ کہا نہ، میں کلمہ تو پڑھتی رہوں گی، میں اپنے محبوب کا کلمہ پڑھتی رہوں گی، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ اب اس مردود نے یہ کیا کہ حضرت زنیرہ کی ایک آنکھ میں گرم سلاخیں ڈال دی، آنکھ بہہ گئی۔ کہا اب بھی باز آ جا، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، کلمے کا انکار کر دے۔ اس نے کہا کہ یہ آنکھ کیا ہے، تو نے بہت کم قیمت لگائی ہے محبوب کا، میرے محبوب کا سودا جو ہے بہت کم لگایا ہے تو نے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ جان بھی محبوب کی، یہ جسم بھی محبوب کا ہے، یہ ساری چیز محمد کی ہے۔ کہا تو پھر سن۔ دوسرا گرم سلاخ اٹھایا اور گرم سلاخ اٹھا کر کے دوسری آنکھ بھی پھوڑ ڈالی۔ کہا اب سن، میں نے تو دونوں آنکھیں بہا دی ہیں، اب اپنے محبوب کو بلا، اپنے محبوب کو بلا جس کا تو کلمہ پڑھتی ہے، اسے بولا، دیکھیں وہ کتنی طاقت رکھتا ہے، کتنا اختیار رکھتا ہے۔ اب حضرت زنیرہ نے آنکھوں کو بند کیا، آنکھیں تو بہہ چکی تھی، خون بہہ رہے تھے، ہاتھ بندھے تھے، پیر بندھے تھے۔ اس نے آواز لگائی، اے میرے رب تو دیکھ رہا ہے، اے میرے مولا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سزائیں اگر مجھے مل رہی ہیں تو اس لیے نہیں کہ زمین و جائیداد کا معاملہ ہے، اس لیے نہیں تنخواہ کا معاملہ ہے، اس لیے نہیں کہ خدمت گزاری کا معاملہ ہے۔ اگر یہ آنکھیں بہی ہیں تو تیرے دین کے لیے بہی ہے، تیرے محبوب کی محبت کے لیے بہی ہے۔ اے میرے مولا تو اپنے کرم سے میری یہ صدا جو چیلنج کیا گیا ہے، میری یہ صدا، میرا یہ پیغام میرے محبوب تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ صدا ہواؤں کے ذریعہ، فضاؤں کے ذریعہ، ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوا میرے آقا اور آپ کے آقا تک یہ پیغام پہنچا۔ چند لمحے کے بعد آقا تشریف لائے۔ کہا زنیرہ کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ اب آپ آ گئے ہیں، ساری تکلیفیں دور ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ آ گئے ہیں تو ساری تکلیفیں یا رسول اللہ ختم ہو گئی ہیں۔ کہا ہوا کیا بتا؟ کہا میرے مالک نے میری دونوں آنکھیں بہا دی ہیں یا رسول اللہ، بس غم ہے تو صرف ایک غم ہے جو حضور شہزادے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند نے کہا کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں۔ بولے سبحان اللہ یار، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اور اس فقیر نے کہا کہ جو بخشا دل تو مولا بخش دے الفت محمد کی، جو دی آنکھیں تو دکھا دے خدا صورت محمد کی۔ سبحان اللہ۔ اور خدا ان کو لیتا ہے کہ ہیں جن کے عمل اچھے، اور بروں کو آپ لیتے ہیں، یہ عادت ہے محمد کی، بروں کو آپ لیتے ہیں، یہ عادت ہے محمد کی۔ کہا اے زنیرہ کیا چاہتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ غم اگر ہے تو صرف اس بات کا غم ہے کہ آپ اب رخ روشن نہیں دیکھ پاؤں گی، یا رسول اللہ اب جمال جہاں آرا نہ دیکھ پاؤں گی، یا رسول اللہ میں رو رہی ہوں تو صرف اس لیے رو رہی ہوں، تکلیف سے نہیں، آنکھ کے بہہ جانے سے نہیں، یا رسول اللہ صرف اس لیے رو رہی ہوں، غم یہ ہے کہ اب آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ یا رسول اللہ اب آپ کے چہرے کو دیکھنے سے محروم کر دیا ان کافروں نے مجھے۔ زاروں قطار رونے لگی۔ سرکار کیفیت میں آئے، سرکار کی رحمت مچلی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے زنیرہ اب رو مات،
बल्कि सुन, अब तेरा महबूब तेरे पास आ गया है। सरकार ने अपने दस्ते नाज पे दम किया है और दोनों आंखों पे हाथ को फेरा है। हजरत ज़नीरा कहती हैं मेरी आंख की बीनाई वापस आ गई, सुभान अल्लाह, मेरे आंख की बीनाई। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप लोग घबरा गए हैं ना, जा उठ के जा रहे हैं। बोलिए क्या कीजिएगा, वक्त ही ऐसा मिला है कि जगाना भी है, तकरीर भी करनी है ना, नसीहत भी करना है और जगाना। तो मेरे अजीज़ मेरे दोस्त ज़रा गौर करो कि ये दीन जो हम तक आया है आसानी से नहीं पहुंचा हम तक, बड़ी मेहनत की गई है, बड़ी मुशक्क़त की गई है, बड़ी कुर्बानी दी गई है, फिर जाके ये दीन हम तक पहुंचा है। आप गौर करें, आपने चूँकि तारीख़ का मुताला आपने छोड़ दिया है तो आपको पता ही नहीं है कि दीन इस्लाम कैसे फैला है, दीन इस्लाम कैसे आगे बढ़ा, हम तक कैसे आया है, गरीब नवाज के ज़रिए से कैसे हम तक दीन इस्लाम पहुंचा है। ज़रा गौर करो, देखो जब हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 30 से भी कम तादाद थी मुसलमानों की और बायकाट किया गया था मक्का की सरज़मीन पे, और आपको शौबे अबी तालिब यानी घाटी में आपको कैद कर दिया गया था। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह दीन को कितने हल्के में हम और आप ले रहे हैं, मर्द हो या औरत, दीन को कितने हल्के में हम और आपने लिया है, लेकिन दीन कितना अहम है। अब ज़रा गौर करो कि जब शौबे अबी तालिब में घाटी में कैद कर दिया गया, आप लोग जिसे कहते हैं हुक्का पानी बंद कर देना, कहते हैं ना अपने समाज में कोई अगर नाफरमान हो, समाज की बात ना माने या कोई ऐसा काम कर दे तो आप लोग हुक्का पानी बंद कर देते हो, यानी उसका मरने जीने में कोई शरीक नहीं, उसके दावत में कोई गया नहीं, उससे सलाम कलाम सब बंद कर देते हो, है ना। उसी तरह से शौबे अबी तालिब में हुजूर को और हुजूर के चाहने वालों को बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। अब जब आप कैद हुए तो 1-2 रोज़ नहीं, महीनों रहे उसमें, और कैफियत ये हुई कि जब खाना पानी गल्ला बंद हो गया, ख़त्म हो गया, तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि जाओ मक्का के मार्केट से, मक्का के बाज़ार से गल्ला जात ख़रीद करके ले आओ। अब जितने सरकार के सहाबा जाते थे गल्ला ख़रीदने के लिए, तो ये गुंडे अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, ये सब गुंडे जो थे ये सब दनदनाते फिरते थे, और जहाँ मुसलमान को देखते थे किसी दुकान पे, वहाँ पे जाके कोड़ा लेके खड़े हो जाते थे, इशारा करते थे खबरदार देना मत, अगर दोगे तो दुकान ख़राब कर देंगे, दुकान लूट लेंगे। कीमत इतनी बताई जाती थी कि इन बेचारे के पास उस वक्त उस लम्हे पैसे नहीं थे, ख़रीद भी ना पाते थे। वापस मायूस होकर के वापस आए, सरकार खामोश हैं। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से अंदर जब आए तो हज़रत बीबी खदीजा से पूछा, ए भी खदीजा मेरी बेटियां कहाँ हैं? ज़रा गौर करो, तवज्जो से सुनना, मेरी बेटियां कहाँ हैं, फ़ातिमा कहाँ है, ज़ैनब कहाँ है, ये सब कहाँ हैं? तो सरकार की बीवी, सरकार के ज़ौजे मोहतरमा हज़रत बीबी खदीजा पलट करके दिखाती हैं, या रसूल अल्लाह मेरे पीछे छुपी हैं। कहा क्यों छुपी हैं? कहा कई रोज़ से फाका कश हैं, कई रोज़ से भूखी है, चेहरे मुरझा गए हैं या रसूल अल्लाह, और ये शहज़ादी वो हैं जो इस हाल में आपकी बारगाह में आना नहीं चाहती कि अगर आपकी बारगाह में आएंगी इनके चेहरे कुमला गए हैं, मुरझा गए हैं, 3 रोज़ का फाका कशी हो गई, 3 रोज़ से भूखी प्यासी हैं। या रसूल अल्लाह अगर इस हाल में आपके सामने आ गई तो आप गमज़दा हो जाएंगे, इसलिए ये मेरे पीछे छुपी है। सरकार ने एक हाथ से एक उंगली पकड़ाया खातून जन्नत का, फातिमा ज़हरा का, और एक उंगली पकड़ाया हज़रत बीबी ज़ैनब को, और कहा चलो। और जब इनको ले करके गए सरकार, तो एक सूखे पेड़ के करीब गए। ज़रा गौर करो मेरे भाई कि मज़हब इस्लाम कितनी मुशक्क़त से फैला है, मज़हब इस्लाम कितनी मेहनत और मुशक्क़त और जाफिशानी से। जनाब मीर साहब ने अपने बेटा और अपनी माँ के नाम से 1000 रुपया दान किया। ऐलान करो। जनाब मीर जासिर साहब ने अपने बेटे के नाम से और
अपने अपने अम्मी के नाम से 1000 रुपया दान किया है। अल्लाह ताला इसाले सवाब किया। इसाले सवाब अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आमीन आमीन। तो मेरे अजीज़ मेरे दोस्त, हुजूर ले गए और ले जाने के बाद आप देखें कि आपके बच्चे, रमज़ान गुज़रा है, अगर आपकी छोटी बेटियां एक रोज़ रोज़ा रखती थी तो आप कितने कितने लवाजमात का इंतज़ाम करते थे, कितने फल का इंतज़ाम करते थे, तरह तरह के मशरूब लाते थे कि मेरी बेटी का चेहरा कुम्हला गया है, एक रोज़ा रखा तो कुम्हला गया। और वो मुख्तार दो जहां सरकार कायनात की बेटी 3 रोज़ से भूखी प्यासी है, सरकार ले गए और ले जाने के बाद एक पेड़, सूखे पेड़ के करीब गए, डाली पकड़ के उसे हिलाया है। सूखे पत्ते जब गिरे, बेटियां बाप को देख रही हैं कि अब बाप का क्या हुक्म है, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफ़ा की शान पे मेरे आका ने उस सूखे पत्ते को उठाया है। फातिमा से कहा, फातिमा ज़ैनब अपने दामन को फैला, और ये फातिमा ज़ैनब ने अपने दामन को फैलाया है। मेरे मुस्तफ़ा ने सूखे पत्ते को दोनों हाथ के बीच में रखा और रगड़ करके उसे बारीक किया, पतला किया, कहा बेटी ये मशीयत दी है, रब की मशीयत है, आज हम सब्र करेंगे, कल इनाम मिलेगा हमें। बेटी घबराना नहीं, इस सूखे पत्ते के बुरादे को, इस सूखे पत्ते के सफूफ को ले जाओ, पानी में घोल करके उसे पी लो, शिकम भर जाएगा, भूख की तपिश खत्म हो जाएगी। मेरे अजीज मेरे दोस्त, उस हाल में भी दीन को बचाया है, उस हाल में भी मेरे मुस्तफ़ा ने दीन की हिफाजत की है, इसी इस्लाम की हिफाजत की है जो आप तक पहुंचा है, जिसे आप लापरवाही में इसे लेते हो, बहुत हल्के में लेते हो। मेरे अजीज मेरे दोस्त मेरे भाई, लिल्लाह अल्लाह के वास्ते अब मजहब इस्लाम के दामन में आ जाओ। अगर इज़्ज़त चाहते हो तो इस्लाम के दामन में तुम्हें मिलेगी, मान मर्यादा चाहते हो तो इस्लाम के दामन में तुम्हें मिलेगा, अगर इज़्ज़त अज़मत चाहते हो तो मजहब इस्लाम के दामन में तुम्हें मिलेगा। आओ, दूर मत हो जाओ, सारी कौम अपने दीन की तरफ माइल हो चुकी हैं। बोलो, हुई है कि नहीं? जो कल तक कभी मनादिर का रुख नहीं करते थे, जो कल तक अपने दीन और धर्म से दूर थे, आज निगाह उठा करके देखो, वो माथे पे टीका लगाए हुए हैं, हाथों में चूड़ियां पहने हुए हैं और जनेऊ पहन करके आज घूम रहे हैं। आज वो अपने धर्म पे मुकम्मल तौर से सख्ती से पाबंद हो रहे हैं। आज अगर अपने धर्म से कोई दूर है तो वाहिद कौम मुस्लिम है जो मजहब इस्लाम से दूर होती चली जा रही है और गैरों के तरीक़ों को अपनाए हुए है। मेरे अजीज़ मेरे दोस्त, मैं एक बहुत बड़ी बात कह दिया करता हूँ दौरान खिताब, चूँकि क्या करूँ, दिल में इतने दाग हैं कि अपने कौम के हालात को जब देखता हूँ तो रोना आता है। मैं वो ख़तीब नहीं हूँ मेरे अजीज़ मेरे दोस्त कि मैं आऊँ और फॉर्मेलिटी निभा करके चला जाऊँ, बल्कि मैं वो ख़तीब हूँ कि जब आऊँगा तो कुछ दे करके जाऊँगा। और मैं वो जर्राह हूँ जो ज़ख्मों को चीर करके दवा डाल करके जाया करता है। क्यों? इसलिए कि दर्द है कौम का दर्द है। मेरे जवान गुमराह हो रहे हैं, बेराहरो हो रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं। हमारी बेटियां गलत तरीके पे चल रही हैं, गलत रास्ते पे चल रही हैं। आज हमारी बेटियां मजहब इस्लाम पे उंगलियां उठाती हुई नजर आ रही हैं। वजह क्या है? तो वजह सिर्फ ये है कि हमारी कौम में दीन का इल्म न रहा। दुनिया का इल्म तो रहा लेकिन दीन का हमारे अंदर इल्म नहीं रहा, हमारे अंदर से दीन का इल्म चला गया। मेरे दोस्त, आज एक ही ढाबे में सब बह रहे हैं, मर्द हो वो, औरतें हैं वो। मेरे अजीज सुनो, जब गरीब नवाज आए थे ना बंगाल की धरती पे,
تو غریب نواز کے ہاتھ پہ 5 لاکھ ہندو ایک سفر میں مسلمان ہوا. کتنے ہوئے؟ 5 لاکھ ہندو غریب نواز خواجہ معین الدین کے ہاتھ پہ ایمان لائے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. جب یہ واپس گئے اجمیر، انہوں نے خط لکھا اپنی ماں کو کہ ماں یہ سفر میرا بڑا مبارک رہا کہ ایک سفر میں، بنگال کے سفر میں 5 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے، اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر. تو ادھر سے جواب آیا کہ بیٹے یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے. بیٹے یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے. پھر غریب نواز نے ادھر سے لکھا کہ ماں سفر ہم نے کیا، محنت ہم نے کی، مشقت ہم نے کیا ہے، تو یہ میرا کمال نہیں، آپ کا کمال کیسے ہو گیا؟ تو غریب نواز کی والدہ، غریب نواز کی ماں ماہ نور بی بی ادھر سے جواب لکھتی ہے کہ بیٹے جب تیری بنیاد شکم میں پڑی تھی نا، میں نے تہجد کی نماز قضا نہیں کی تھی. سبحان اللہ سبحان جب تو شکم میں آیا تھا تہجد کی نماز نہیں چھوڑتی، چاشت نہیں چھوڑتی، اشراق نہیں چھوڑتی، اوابین نہیں چھوڑتی، قرآن کی تلاوت سے دور نہ ہوئی. میرے لال 9 مہینہ تو شکم میں رہا، 9 مہینہ میں مصلی عبادت میں دن اور رات گزارتی رہی. سبحان اللہ. اور جب تو دنیا میں آیا نا تو میرے عزیز تہجد کے وقت اٹھتی تھی، اور تہجد کے وقت اٹھ کر کے پہلے وضو کرتی تھی، تہجد کی نماز پڑھتی تھی، اور نماز پڑھ کر کے تجھے جگاتی تھی، تجھے جگا کے گود میں لیتی تھی. تو دودھ پیتا رہتا تھا، میں نعت نبی کی لوری سناتی رہتی تھی. تو دودھ پیتا رہتا تھا، میں قرآن کی لوری دیتی رہتی تھی. تو دودھ پیتا رہتا تھا، میں سورہ یاسین پڑھتی رہتی تھی. تو بیٹے وہ تیرا کمال نہیں ہے، وہ میرے اسی دودھ کا کمال ہے جو قرآن کے سائے میں تجھے پلایا تھا، تہجد کی نماز کے سائے میں تجھے پلایا تھا. بیٹا جب نماز کا وقت ہوتا تھا مصلی بچھاتی تھی، لیکن مصلی کے بغل میں تجھے بھی رکھتی تھی. تیرا ذہن سادہ تھا، نگاہ ٹکٹکی باندھ کے تو میری اداؤں کو دیکھتا رہتا تھا. سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. ذہن میں دل میں نماز کی توفیق آتی رہتی تھی. بیٹے وہ تیرا نہیں، میرا کمال ہے. میں نے ایک جگہ یہ تقریر کیا، تقریر کر کر کے جب میں واپس آنے لگا تو دیکھا ایک بچہ مجھ سے ملا ہے نا، بچہ ملا تو اچھا خاصا بھلا پینٹ تھا اس کا. اس پینٹ کو 4 جگہ پھاڑے ہوئے تھا. سنا، 4 جگہ اس پینٹ کو پھاڑے ہوئے تھا. شرٹ دیکھا، شرٹ کو یہاں سے پھاڑے ہوئے، یہاں سے پھاڑے ہوئے، یہاں سے پھاڑے ہوئے، یہاں سے پھاڑے ہوئے. موٹا موٹا کڑا اور کنگن پہنے ہوئے ہیں، کان چھدوائے ہوئے ہیں، ناک چھدوائے ہوئے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ جو اللہ نے بال کا حسن دیا ہے، قدرتی بال جو ہے، اسے ایک طرف سے ادھر بلو کیے ہوئے ہیں، ادھر لال کیے ہوئے ہیں، بیچ میں پیلا اور ہرا کیے ہوئے ہیں، ہے نا. جب میں نے اس کو دیکھا تو بابو تو انسان ہی تو ہے، تو انسان ہی نہ ہے. کہا ہاں حضرت آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم کہا نہیں، یہ کنڈیشن جو ہے یہ کچھ اور بتا رہی ہے کہ اچھے بھلے خاصے لباس کو پھاڑ ڈالا ہے، اور یہ اتنا پیارا قدرت نے اللہ نے تجھے عطا کیا تھا بال، لیکن اللہ کا پسندیدہ تجھے پسند نہ آیا، اور تو اپنے حالات سے اس کو رنگوا کر کے عجب کارٹون بنا ہوا ہے. اس نے کہا حضرت آج آپ کی تقریر میں نے سنی تھی. میں نے کہا کہ پھر؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا نا کہ یہ غریب نواز کو اس کی ماں نے کہا تھا یہ تیرا کمال نہیں میرا کمال. ہم کہا ہاں ہم نے تو ضرور کہا تھا. کہا حضور تو یہ بھی سن لیجئے، یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ کمال میرا نہیں ہے، بلکہ یہ کمال میری ماں کا ہے. سبحان اللہ. میں نے پوچھا وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ غریب نواز جب روتے تھے تو ماں قرآن کی لوری دیتی تھی، غریب نواز جب روتے تھے تو ماں نعت نبی کی لوری دیتی تھی، اور آج جب ہم روتے ہیں تو ماں موبائل میں کارٹون دے کے پکڑاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کارٹون میں کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے لیکن جانور کی شکل ہوتی ہے. سبحان اللہ ہے نا.
इंसान होता है, जानवर की शक्ल होती है। आज का बच्चा जब रोता है ना, माँ टीवी सीरियल देखती है, और जब सीरियल देखती रहती है, बच्चा जब डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, तो माँ उस बच्चे को बड़ा सा मोबाइल ला करके दे देती है, कार्टून खोल करके दे देती है। वो बच्चा कार्टून में लगा हुआ धुन है। अब माँ जितना टीवी सीरियल देखना है देख रही है, उसे कोई गम नहीं है। और जब सीरियल वो बच्चा देखता है तो वो कार्टून देखता है, तो बताओ कार्टून में होता क्या है? बोलो। उसी तरीके का लिबास होता है ना, बाल भी उसी तरह देखोगे, कभी कार्टून में बाल भी उसी तरह से रंगे हुए हैं। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि मेरी माँ का कमाल है। तो अब मैं कहूँगा, सुनो सुनो, ये उसकी माँ का कमाल नहीं बल्कि उसके बाप की गलती है। ना वो मोबाइल ला करके देता और ना माँ उसे कार्टून दिखलाती। इसलिए अपने घरों पे सख्ती करो, मोबाइल के इस्तेमाल पे परहेज करो। अगर मोबाइल ही देना है तो कीपैड वाला मोबाइल दो, जिसमें न कोई वीडियो हो, जिसमें न कोई कार्टून हो, और कुछ भी ना हो। अगर हो तो नाते नबी हो, उसमें भर के दो, नाते नबी भर के दो, उसमें भर के दो कुरान की आयत, उसमें सूरह रहमान भर के दो, सूरह यासीन भर के दो, कि जब तुम्हारी बीवी घबराए तो सूरह रहमान खुद भी सुने और तुम्हारे बेटे को भी सुनाए। रहमान सूरह यासीन खुद भी सुने और तुम्हारे बच्चों को भी सुनाए। जब ये करोगे तुम्हारे घर का माहौल बदलेगा, जब ये करोगे तुम्हारा मुआशरा बदलेगा। ये जलसा कराने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारा माहौल बदल जाए, हमारा मुआशरा बदल जाए। खतीब तो बहुत आते हैं, खताबत तो बहुत सुनते हो, लेकिन ऐसी तकरीर सुनो जिससे तुम्हें कुछ मिले, कुछ नसीहत लेकर के जाओ, कुछ हदीस याद करके जाओ। आओ एक हदीस सुनाता हूँ, सुनोगे? जी 3:15 हो गए, 15 मिनट की वो हदीस है। जी सुनाइए। 3:30 बज जाएगा, फिर सलाम होगा, फिर मुसाफा करे, फिर अजान हो जाएगी। तो अजान में जा कर के सो जाना है? मेरे अजीज, मेरे बाबू, काश तुम दोनों मुझे मालूम है तुम दोनों बहुत तवज्जो से सुन रहे हो। मेरे प्यारे नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ, यकीन जाओ। नहीं वो तो आपसे पीछे मेरा बाबू है, मेरा अजीज़ बच्चा। लिल्ला नमाज बन जाओ। मैं ज़िम्मा लेता हूँ कि नमाज के जब पाबंद हो जाओगे तो जिस मंजिल में जाओगे ना, अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हें अल्लाह IPS बना दे, IAS बना दे, डॉक्टर बना दे, ऐसा ओहदा तुम्हें अता करे। ये देता कौन है यार? बोलो ना, ये देता कौन है? ये ओहदा, ये मर्तबा, ये मकाम कौन देता है? खुदा की कसम, दुनिया का कोई बशर नहीं देता है। अगर देता है तो वो रब्बे कायनात देता है, वो रब्बुल आलमीन देता है। आओ मेरे अजीज, मेरे दोस्त, उस अपने रब को मना ले, रब की बारगाह में गिरिया जारी करे, रब को मना ले। क्यों? इसलिए कि रब हमारा रूठ चुका है, हमारे किरदार की बुनियाद पे, हमारे आदत व अतवार की बुनियाद पे हमारा रब हमसे रूठ गया है। हम अपने रब को मनाए। अगर रब मान गया तो सब मान गए, और रब रूठ गया तो सब रूठ जाए। तुम्हारी रोजी रोटी तुमसे रूठ जाएगी, तुम्हारी मानो मर्यादा तुमसे रूठ जाएगी, तुम्हारी इज्जत तुमसे छिन जाएगी। ज़माने में वो मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमा होकर, आज खार हुए हैं हम तारीक़ क़ुरा होकर। आज हम खार ज़लील हो रहे हैं सिर्फ़ इसलिए कि हमने उस रास्ते को छोड़ दिया है जिस रास्ते पे हमें इज्जत मिलने वाली थी। एक हदीस सुन लो, दुरूद शरीफ एक मरतबा सुना दो। सैयदना व शफीना तो सल्ली अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, सरकार ने इरशाद फरमाया, ए आयशा आज मैं बहुत खुश हूँ, आज जो मांगना है मांग लो, मैं अता कर दूँगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सोचने लगी कि कौन सी चीज़ मांगूं और कौन सी चीज़ छोड़ूं। हज़रत आयशा ने
को हुजूर ने इरशाद फरमाया, लेकिन सुनो, एक चीज़ मांगो, एक चीज़ मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूँगा। अब हज़रत आयशा सोचने लगी कि या अल्लाह कौन सी चीज़ मांगे, सब चीज़ तो पसंद है, कौन सी चीज़ मांगे। उन्होंने अर्ज़ी पेश की, या रसूलल्लाह अगर इजाज़त दीजिए तो मैं अपने बाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मशवरा करके आ जाऊँ। कहा ठीक है जाओ। हज़रत अबू बकर की बारगाह में पहुँची, कहा बाबा सरकार बहुत खुश हैं और सरकार ने इरशाद फरमाया है कि जो मांगोगे आज तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन एक चीज़, तो कौन सी चीज़ हम मांगें कि जिसमें सब कुछ हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेटी एक शर्त पे मैं बताऊंगा कि अगर वो चीज़ तुम्हें हुजूर ने बताया तो वो सबसे पहले आकर तुम हमें बताओगे। तो हज़रत आयशा ने कहा बाबा हुजूर जो बताएंगे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये हैरत की बात है बाबा कि वो कौन सी चीज़ है जो आपसे पोशीदा है, आप तो यार गार हैं, आप तो सिद्दीक़ अकबर हैं। कहा मेरे सिद्दीक़ अकबर ने कहा, ए आयशा वो सिर्फ अल्लाह जानता है और मुस्तफ़ा जानते हैं, जिब्रील भी नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता, सिर्फ महबूब और मुहिब जाने। कहा वो कौन सी चीज़ है। कहा जाओ और जाके कदम बोसी करना, कहना या रसूल अल्लाह जब शब मेराज आप गए थे रब की बारगाह में, रब की बारगाह में जब गए थे दना फतदल्ला और अदना के करीब, और जब महबूब व मुहिब का मिलन हुआ था, यानी आपका खुदा से मिलन हुआ था, उस लम्हे उस घड़ी दोस्त दोस्त से बहुत सारी राज की बातें किया करते हैं। तो उसमें जो राज की बात हुई थी उसमें से एक बात आप हमें बता दीजिए। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए आयशा मैं देख रहा हूँ कि ये बातें तुम्हारी नहीं है बल्कि मेरे दोस्त अबू बकर की है। ज़हनियत ठीक है ए आयशा मैं बताऊँगा, सुनो वो बात यह है कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, मेरे महबूब तुम्हारी जो उम्मत उस पर अमल करेगी मैं उसे बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत दे दूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई कि उस एक बात पे जो भी अमल करेगा मैं उसे बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत दे दूँगा। ये अल्लाह ने मुझ मोहम्मद से वादा किया है। बात समझ गए? तकरीर ख़त्म कर दी जाए? नहीं चलने दीजिए। है? क्या किसको उस बात को सुना दिया जाए? जी तो अमल कैसे होगा? हाथ उठा के बताइए। कि बहुत हल्की बात है, कोई भारी बात नहीं है, कोई बहुत ये नहीं है। हाथ उठा के बताओ कि नबी की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए इस पर कौन अमल करेगा? बोलो हम खुद उठाते हैं। अल्लाह हमें तौफीक अता है ना, हम खुद उठाते हैं कि अल्लाह इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सरकार ने इरशाद फरमाया, या आयशा मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि मेरी जो उम्मत इस पे अमल करेगी अल्लाह उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता करेगा। माँ आयशा ने हाथ जोड़ के कहा, या रसूल अल्लाह जल्दी बता दीजिए, सबसे पहले मैं ही उस पर अमल करूँगी। तो हुजूर ने मुस्कुराए, मेरी बहनों बात बाद में करना, सारी ज़िंदगी तुम्हें बात करने के लिए पड़ी हुई है, अपनी गुफ्तगू रहने दो, मुस्तफ़ा की गुफ्तगू पहले सुनो, हदीस मुस्तफ़ा सुनो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी संवरेगी, इससे तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। ये हदीस रसूल है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, ए महबूब तुम्हारी उम्मत में से जो फर्द टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, बाप को बेटे से मिला देगा, भाई को भाई से मिला देगा, पड़ोसी से पड़ोसी को मिला देगा, समाज में मुआशरे में मोहब्बत की हवा चला देगा, मैं उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता करूंगा।